الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم آصف لقمان قاضی صاحب اور آج کی اس نشست میں شریک میرے انتہائی واجب الاحترام بہت ہی پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بات کرنے سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج اجتماعی طور پر بھی آپ سب کی خدمت میں گزشتہ عید الفطر کی مبارکباد پیش کروں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی زندگی میں ہمیں ہزارہا عید نصیب فرمائے، بلکہ ہمارا ہر لمحہ عید کی طرح خوشی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھے۔ آج میں ایک ایسی حالت میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ہمارے اپنے پیارے ملک پاکستان میں ایک شدید زہریلی سیاسی پولرائزیشن ہے، اور ہماری سیاست اور ملک کی معیشت دونوں تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ایوانوں کے اندر بھی گالی گلوچ، ایک دوسرے پر شدید الزامات، اعتراضات، چوک اور چوراہوں میں بھی ایک دوسرے پر خودکش حملوں کے اعلانات، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے اعلانات، گراؤ اور جلاؤ کے دھمکیاں، اور یہ بات چلتی چلتے بالآخر اس جگہ تک بھی پہنچ گئی جہاں ادب کی وجہ سے انسان دعا کے لیے بھی بلند آواز سے دعا نہیں مانگ سکتا۔ ایسے ماحول میں میں آپ کے ساتھ اپنی بات بھی کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سنوں، اس لیے کہ پاکستان تو ہم سب کا ہے۔ اگر اس گھر میں آگ لگی ہو اور کوئی خاموشی اختیار کر لے یا تماشائی بن جائے تو یہ آگ چلتی چلتی اس کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ اس وقت ملک سے باہر ہیں، لیکن میرا مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے اور میرا یقین ہے کہ پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی دھرتی سے پیار ہے، اپنے ملک کے بارے میں فکر مند ہیں، ڈسکشن بھی کرتے ہیں تو اپنے ملک کے حوالے سے، خواب بھی دیکھتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات بھی کروں اور آپ لوگوں کی بات بھی سنوں۔ جس طرح آصف بھائی نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا دوسرا مرحلہ آپ کے سننے کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی ضرورت ہے اور ہمارے آئندہ نسلوں کی بھی، کہ ایک متوازن، معتدل، ایک پروگریسیو معاشرہ ہم اس کے لیے تشکیل دیں، اور ہم میراث میں جھگڑوں کو، لڑائیوں کو، گالی گلوچ کو پراپرٹی کے طور پر نہ چھوڑیں، بلکہ برداشت ہو، دلیل کی قوت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی برتاؤ ہو، محبت ہو، جس کے نتیجے میں ہم ایک قوم بن سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک ملت بن سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں اگر ہم وسائل میں یا تعداد میں کم بھی ہو لیکن ہم ناقابل شکست بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، فتح ایک منظم قوم کے پیچھے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں
जो सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए। हमारी दावत सबके लिए यही है कि आपस में लड़ने की बजाय हम गुर्बत के खिलाफ क्यों ना लड़ें, हम जहालत के खिलाफ क्यों ना लड़ें, हम जुल्म के खिलाफ क्यों ना लड़ें, हम करप्शन के खिलाफ क्यों न लड़ें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि गुज़श्ता 75 सालों में जिन लोगों के हाथों में इख्तियार आया है, उन्होंने इस इख्तियार को धरती के लिए, कौम के लिए या इस कौम के मुस्तकबिल और आइंदा नस्लों के लिए इस्तेमाल करने की बजाय ज़ाती मुफाद, पार्टी मुफाद, ख़ानदान की मुफाद के लिए इस्तेमाल किया है, या अपनी प्रॉपर्टियों में, शुगर मिल्स में, कारखानों में, मुल्क के अंदर और बाहर के बैंकों में, कंपनियों में दौलत में इजाफा किया है। और यही वजह है कि 75 सालों में हम एक कौम नहीं बन सके, बल्कि हमने जोग्राफिया को भी ज़ाया किया इन वजूहात की वजह से। हम नजरिया के वफादार भी नहीं बन सके इन वजूहात की वजह से। ये हम जानते हैं कि तवील जद्दोजहद के बाद हम कामयाब हो गए थे एक आईन बनाने में, लेकिन एक दिन के लिए भी उस आईन पर अमल नहीं हुआ। आईन में जो दफात मफादात के लिए हैं, अपने हुकूक के लिए हैं, इख्तियारात के लिए हैं, वो तो हुक्मरान भी जानते हैं, लेकिन जो आईन के दफात अवाम के लिए हैं, शहरियों के हुकूक के लिए है, फिर हुक्मरान उन दफात के बारे में अंधा, बहरा और गूंगा होता है। एक मसला तो यह भी है कि यहाँ जो भी आया है पैराशूट के जरिए आया है, और कौम ने उसको कंधों पर बैठाया नहीं है बल्कि मुसल्लत किया गया है। यहाँ ऐसे भी ड्रामे हमने देखे हैं कि रात के अंधेरे में माइन कुरैशी साहब आए, कराची एयरपोर्ट पर उनको पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड तमा दिया गया, और अगले दिन वो वजीर आजम बन गए, और जब यहाँ फारिग हो गए तो दोबारा अपनी मुलाजिमत पर तशरीफ ले गए। शौकत अजीज साहब भी आ गए, फारिग हो गए तो दोबारा अपनी मुलाजिमत की तरफ तशरीफ ले गए। इसलिए कि इस मुल्क का अगर पार्लियामेंट है वो भी बराए नाम है, वो एक रबड़ स्टेम्प की तरह हमेशा इस्तेमाल किया गया है। दूर की बात क्या करूं, गुज़श्ता जो इस वक्त हमारे पार्लियामेंट है, 3.5 साल की कारकर्दगी अब देखे कि इस पार्लियामेंट के हर मेंबर पर हमारी इस गरीब और मकरूस कौम का खर्चा कितना आया है, और इस पार्लियामेंट ने डिलीवर कितना किया है। मराहत तो ली है, मुफादात तो ली है, प्रोटोकॉल तो ली है, लेकिन उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की है सिवाय उन चंद कवानीन के अलावा जो IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर या बाहर के परवर्द NGOs के कहने पर उन्होंने की है। लेकिन आम फर्द के लिए, शहरियों के लिए, देहातियों के लिए कोई उसका कारनामा नहीं है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने भी हुकूमतों को लाने में और गिराने में हमेशा एक कलीदी किरदार अदा किया है, और एस्टेब्लिशमेंट ही की वजह से, उनकी मुदाखिलत की वजह से हमारी सियासत नहीं, कमजोर है, मजबूत नहीं हो सकी। हमारी मईशत भी कमजोर है, मजबूत नहीं हो सकी। हमारी जमहूरियत भी कमजोर रही, मजबूत नहीं हो सकी। 1954 से लेकर आज तक ये एक खेल जारी है। शहबाज शरीफ साहब 23वां वजीर आजम है, और इससे पहले जो 22 वजीर आजम आए हैं, उनके लाने में भी और उनको रुस्खत करने में भी हमारी स्टेब्लिशमेंट का बुनियादी किरदार रहा है। हमें अफसोस है, शर्मिंदगी है कि कायद आज़म के रहलत के बाद हमारी सियासत पर, हमारी मईशत पर वही मुफाद परस्त टोला मुसल्लत हो गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तसलसल था, और अंग्रेजों ने जिनको वफादारी की बुनियाद पर बड़े बड़े रकबे दिए थे, फिर उन्हीं जागीरदारों ने बैंकों से कर्जा लिया, वो सनतकार बन गए, फिर वो ब्यूरोक्रेसी में भी मौसर हो गए, और आज वही तबका है
जो इन पार्टियों में शामिल है, बेटा एक तरफ है और बाप दूसरे तरफ है। बड़ा बेटा भाई एक पार्टी में, छोटा भाई दूसरे पार्टी में है, और हुकूमतें गिरती हैं, लेकिन इस मुफाद परस्त टोले के मुफाद को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए कि हमेशा ये अपने खानदान को इस तरतीब के साथ तकसीम करता है। अब तो इस्टेब्लिशमेंट में भी उनके लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी उनके लोग होते हैं, हत्ता कि मीडिया हाउसेस भी उनके कब्जे में है। और आज इस मुफाद परस्त टोले और इस्टेब्लिशमेंट, जालिम जागीरदार और करब सरमाएदार का एक एकट है, जिन्होंने 22 करोड़ आवाम की सियासत को यरगमाल बनाया है। मैं इसलिए अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ और बहनों से कि यहाँ सिर्फ मुसल्लह दहशतगर्दी का सामना हमें नहीं है, बल्कि यहाँ मुआशी दहशतगर्दी भी है, यहाँ सियासी दहशतगर्दी भी है, और यहाँ अखलाकी दहशतगर्दी भी है, जिन्होंने इस पूरी सियासत को, पूरी सोसाइटी को पूरी तरह यरगमाल बनाया है। लोग एहतजाज करते हैं, एक हुकूमत को गिराने में कुर्बानियां पेश करते हैं, लेकिन अगले दिन जो नई हुकूमत आती है तो वही मुफाद परस्त टोला फिर दूसरे शक्ल में, दूसरे झंडे के साथ, दूसरे नारे के साथ, दूसरे पार्टी के स्लोगन के साथ फिर बरसर इख्तिदार आते हैं। इसी में ये 75 साल हमारे गुजर गए। अब देखिए, इंसान ने चांद पर कदम रखा, लेकिन खुद मेरा नहीं, वर्ल्ड बैंक का सर्वे है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में 40% लोग गुर्बत के लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 9 करोड़ पाकिस्तानियों की आमदनी वो सिर्फ 15,000 रुपया है। आप मुझे बताएं, 15,000 रुपया में कैसे वो अपने बच्चों को खिला सकता है, कैसे अपने बच्चों को तालीम दे सकता है, कैसे अपने बीमार वालिदैन का इलाज कर सकते हैं, कैसे वो बिजली का बिल अदा करे, पानी का बिल अदा करे, गैस का बिल अदा करे, गमी और शादी में शिरकत करे। ये किसकी वजह से? ये इस मुफाद परस्त टोली की वजह से, जिन्होंने इन तीनों पार्टियों में बड़े अहम पोजीशन लेकर पार्टियों को भी अलगमाल बनाया है और 22 करोड़ अवाम को भी अलगमाल बनाया है। इन लोगों का यही किरदार है कि आज अगर हमारे मुल्क में कोई अदालती निज़ाम है, वो 100% फेल हुआ है। मैं ऐनी गवाह हूं, सोने की चाबी से हमारे इंसाफ के दरवाजे खुलते हैं। और ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जज भी फाइल में जालिम और मजलूम देखने की बजाय इंसान के चेहरे को देखता है और उसके जेब को देखता है। इस वक्त भी पाकिस्तान में 20 लाख से जायद केसेस पेंडिंग पड़े हैं और जजेस हैं, मजे कर रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन इंसाफ मुहैया नहीं कर सकते। यही वजह है कि खुद हमारे जेलों में ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि रहा होते हैं 20-20 साल के बाद, और पता चलता है कि उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, तो उनकी जवानी तो जेल में गुजर गई, उनके बच्चे यतीम, उनके वालिद के मौजूदगी में आपने यतीम बनाए, उनकी बेवी शौहर की मौजूदगी में एक बेवा की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। लेकिन ये जज फिर इसके काबिल नहीं है कि इसका कोई कफारा भी अदा करे, कोई तौबा और इस्तग़फ़ार भी करे, और इस मजलूम आदमी जो आपके गलत फैसले की वजह से 20 साल उसने जेल में गुजारे, उसका कोई उनके तकलीफों का और दुख और दर्द का कोई मदावा हमारा हदारत निज़ाम। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये खुद जजिस भी कहते हैं, ये आज जो वजीर आजम है इस वक्त ये भी कहता है, जो 10 अप्रैल को वजीर आजम फारिग हो गया वो भी कहता है, जो उससे पहले नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे वो भी कहते हैं, और ये तमाम वज़राए आजम फरागत के बाद फिर सच बोलते हैं कि अदालती निज़ाम ठीक नहीं है, ये इंसाफ नहीं दे सका। तो अगर जिस मुल्क में अदालती निज़ाम ही ठीक नहीं है, फिर आप किससे मुतालिबा करते हैं, फिर आप किससे तवक्को रखते हैं, फिर कौन मजलूम की बात सुनेगा?
عدالت کے بعد اگر کسی قوم کی ترقی کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے وہ تعلیم ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس وقت بھی جب انسان نے چاند اور مریخ کی طرف سفر شروع کیا ہے، ہم یکسو نہیں ہو سکے کہ ہمارے ملک میں کون سا نظام تعلیم چلے گا۔ 21 اقسام کا نظام تعلیم اس وقت جاری ہے، 21 اقسام کا، اور پھر خیر دینی تعلیم، اور دینی تعلیم کو بھی 5 دائروں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اگر کوئی دین کا علم حاصل کرے تو وہ امتی نہ بن جائے، وہ مسلک کے ساتھ وابستہ ہو جائے، وہ دیوبندی بن جائے، بریلوی بن جائے، اہل حدیث بن جائے، سنی اور شیعہ پر فخر کرے، لیکن وہ امتی نہ بنے۔ اس لیے کہ دینی مدارس میں بھی ہمارے بچوں کو مسلک کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے، اب تو مساجد کو بھی اسی طرح تقسیم کیا گیا۔ جو باقی تعلیمی ادارے ہیں اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے غریب اور امیر کی بنیاد پر، اور آپ اپنے سٹیٹس کے مطابق اپنے بچے کو تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں 98% لوگ اگر مظلوم اور کمزور ہے، اور 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، تو ان کے بچے بھی ان تعلیمی اداروں میں جانے پر مجبور ہے جہاں پڑھانے کے لیے استاد نہیں ہے، جہاں چار دیواری نہیں ہے، جہاں بچوں کے سکول میں بھی واش روم نہیں ہے، اور انسان کو ایک درد ہوتا ہے، شرم ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جب بچیاں بھی اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے ایسے مقامات جانے پر مجبور ہے، سکول میں واش روم نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، اور یہ اقلیت کی نہیں، یہ اکثریت کی بات میں کرتا ہوں۔ آپ خود اندازہ کریں، کیا کسی وزیر تعلیم کا بیٹا سرکاری سکول میں پڑھتا ہے؟ کیا کسی ڈائریکٹر ایجوکیشن کا بیٹا سرکاری سکول میں پڑھتا ہے؟ یہ بالکل ایک اور دنیا ہے۔ تو ہماری تعلیمی دنیا جس کے لیے ہمارے ملک میں صرف 2.4% بجٹ رکھا جاتا ہے، تو جس ملک کے نظام تعلیم ایسا ہو جس کے لیے 2.4% بجٹ رکھا جاتا ہے، پھر وہ کیسے ترقی کرے گا؟ اور کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک قوم نہ بننے میں ایک بہت عظیم رکاوٹ ہے ایک نظام تعلیم نہ ہونے کا، یکساں نظام تعلیم نہ ہونے کا، اور پھر اس نظام تعلیم کی وجہ سے خود سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 70 لاکھ نوجوان اس وقت نشے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو اگر 22 کروڑ عوام میں 70 لاکھ نوجوان نشے میں مبتلا، اور خود میں سینٹ میں تھا، وفاقی منسٹر نے اعتراف کیا تھا کہ 65% بچے اسلام آباد میں اور بچیاں نشے میں تباہ ہو رہے ہیں، نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو یہی آپ کا حال ہے، جو آپ کے نوجوان، یہی آپ کا مستقبل ہے جو نشے میں تباہ ہو رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون ذمہ دار ہے، اس لیے کہ جو فریاد میں کر رہا ہوں وہی فریاد وزیر اعظم کر رہا ہے، وہی فریاد صدر پاکستان کر رہا ہے، وہی فریاد وزیر تعلیم کر رہا ہے، وہی فریاد سینٹ کا چیئرمین کر رہا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ نظام خراب ہے۔ پولیس بھی کہتا ہے، جی پی بھی کہتا ہے، کلرک بھی کہتا ہے، چیف سیکرٹری بھی کہتا ہے، ممبر بھی کہتا ہے، وزیر اعظم بھی کہتا ہے۔ اب نظام ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ اگر حکومتوں کا کام نظام ٹھیک کرنا نہیں ہے تو پھر وہ خود بتائیں کہ اس کا اور کام کیا ہے۔ جو وعدے کرتے ہیں، جو اعلانات کرتے ہیں، جو منشور پیش کرتے ہیں، 4 سالوں میں، 3 سالوں میں، 2 سالوں میں ان کو یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ اپنے ان وعدوں کو نبھانے کے لیے بھی کوئی کام کرے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا جو ملک ہے یہ ایک زرعی ملک ہے، اور ہم اگر ورلڈ بینک اور IMF کی غلامی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ایک ہی صورت میں کہ ہم اپنی زراعت کو بہتر بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک زرعی ملک بنایا ہے اور پانی بھی دیا ہے، 5 دریاؤں کا ملک ہے، 5 دریاؤں کا ملک، اور پانی کا ہر قطرہ سونا اور چاندی اور ہیرے اور موتی سے زیادہ قیمتی،
لیکن آپ جانتے ہیں کہ 79.7% ہمارے اس ملک میں جو زمین ہے، زرعی زمین ہے، خوبصورت زمین ہے، اس میں سے صرف 23% زمین ایسی ہے جو ہم زر کاش لا سکے، باقی ساری بنجر پڑی ہے۔ تو ہم ایک ایسی قوم ہے کہ سب کچھ ہے ہمارے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ایسا ہے کہ جس طرح آپ کسی چشمے کے کنارے، کوئی دریا کے کنارے پیاس سے مر جائے، تو کیا یہ خودکشی نہیں ہے؟ اس لیے ہم اپنی زمین کو، بنجر زمین کو اب تک آباد نہیں کر سکے۔ برطانیہ کے ایک وزیر میرے پاس آیا تھا کہ میں آپ کو انوائرمنٹ پہ لیکچر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بے شک لیکچر تو دے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قیامت کا اعلان بھی ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں پودا ہو تو مایوسی کے بجائے اور پھینکنے کے بجائے اس کو لگا لے، اس لیے کہ اس کا ذکر اور اس کی زندگی بھی آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ مجھے ماحولیات کے اس برطانوی منسٹر نے کہا کہ میں اور لیکچر نہیں دوں گا، بس آپ اپنی نبی کی بات پر عمل کرے تو پاکستان میں انوائرمنٹ بہتر ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پانی تو دیا ہے، اور پانی آج کی دنیا میں، پانی آئندہ جنگ جو بھی ہوگی ملکوں کے درمیان وہ پانی پر ہوگا۔ اور اس وقت بھی ہمارے اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے علاوہ جو تنازع ہے وہ پانی پر ہے، لیکن پاکستان پانی ضائع کر رہا ہے۔ 62% پانی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کو 5000 ڈیموں کی ضرورت ہے، لیکن ہم نہیں بنا سکے۔ باشا ڈیم نہیں بنا سکے، کالا باغ ڈیم سیاست کے نظر کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اب ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ صدر سے لے کر وزیر اعظم تک، وزیر اعظم سے لے کر عام ممبر اسمبلی تک یہی بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، نظام خراب ہے۔ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی میجارٹی 70% آبادی وہ دیہاتوں پر ہے۔ اب پاکستان کی حکومتوں نے گزشتہ 75 سالوں میں دیہاتوں کو آباد کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سڑکیں وہاں نہیں بنی، بجلی وہاں نہیں ہے، سکولز وہاں نہیں ہے، ہاسپٹل وہاں نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر نوجوانوں کے لیے وہاں چھوٹی سنتی یونٹ کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سب لوگ کراچی کی طرف، لاہور کی طرف، پشاور کی طرف، کوئٹہ کی طرف، اور ہمارے جو شہر ہیں یہ انسانوں کے سمندر بن گئے۔ انوائرمنٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، پانی کی قلت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ڈرینیج سسٹم کا مسئلہ۔ کل میں لاہور سے نکل رہا تھا، آپ یقین کریں 3-4 کلومیٹر انسان پانی کی بدبو کی وجہ سے سانس نہیں لے سکتا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ نہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، نہ مسلم لیگ ذمہ دار ہے، نہ پرویز مشرف کی حکومت، نہ ضیاء الحق کی حکومت، نہ پیپلز پارٹی کی حکومت، کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے پرابلم ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے، ہماری ساری زرعی زمین اس وقت تباہ ہو رہی ہے۔ آپ جب آئیں گے تو آپ کو پودا لگانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، لیکن کون ذمہ دار ہے؟ کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی، اور بنیادی مسئلہ بھی معیشت کا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو پہلا کام یہ کہ انہوں نے مسجد بنائی تھی، اور دوسرا کام یہ کہ چونکہ مدینہ پر یہودیوں کا قبضہ تھا، سودی معیشت کی بنیاد پر ہر مدینہ کے باشندے کو انہوں نے مقروض بنایا تھا، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد معیشت کے خاطر مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اور دعا بھی کی کہ جو آدمی آ کر ہمارے مارکیٹ میں کاروبار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کوشادگی لائے، اور اس کے لیے جنت کی دعا کی۔ یہ ایک ایکسیڈنٹل کام نہیں تھا، یہ امت کو ایک پیغام ہے کہ مسجد اور آزاد معاشی نظام یہ امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہماری پوری معیشت اس وقت مافیاز کے قبضے میں، IMF کے قبضے میں، اور یہ فگرز کو سب کو معلوم ہے
کہ 31,000 अरब का कर्जा था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दौर में। पीटीआई की हुकूमत ने उसको और आगे बढ़ाकर 51,000 तक पहुंचाया और इस वक्त 51,000 अरब कर्जों का एक हमालिया मेरे कंधों पर, आपके कंधों पर, और हमारे इस वक्त जो नई नस्ल है, जो हमारा मुस्तकबिल है, उसका मुस्तकबिल भी हमने घरवी कर दिया। कौन सी हुकूमत अच्छी है जो ज्यादा से ज्यादा कर्जे लाए? अब मादी की बात ना करूं, मैं 5 वज़राए खजाना की बात करूं। असद उमर वजीर बने, सबसे पहला दौरा IMF का। हमाद बने, सबसे पहला विजिट IMF के दरवाजे का। हफीज शेख वजीर खजाना बने, सबसे पहला सजदा उसके चौकट पर। शौकत तरीन बने, सबसे पहला दौरा IMF का। अभी मिफ्ताह इस्माइल बने तो उन्होंने भी उसी कदमों पर चलकर सबसे पहला सजदा ताजीम अदा किया IMF के दरवाजे पर, और खुशखबरी भी दी कि शायद हमें $2 अरब ज्यादा मिलेगा। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और अल्लाह ताला का हुक्म है कि सूदी निज़ाम अल्लाह के साथ जंग का निज़ाम है। और फरमाया इससे ज्यादा सख्त बात क्या हो सकती है कि सूद खाने वाला, खिलाने वाला, कारोबार करने वाला ऐसा है जिस तरह आदमी बेअदबी मुआफ अपनी माँ के साथ निकाह कर ले। इससे ज्यादा सख्त बात क्या हो सकती है? और ये उस हस्ती की बात है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। लेकिन हमारा सारा निजाम सूद की बुनियाद पर अब तक चल रहा है। 2013 से लेकर 2018 तक 13 अरब डॉलर, 13 अरब सूद में अदा किए गए। गुज़श्ता 5 सालों में मुस्लिम लीग की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत ने 5 अरब डॉलर सूद में अदा किया है। तो हमारे कुल जीडीपी कितना है? तो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्जों के नजर हो जाता है और सूद के नजर हो जाता है। लिहाजा ऐसे माहौल में अगर सियासतदान एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली गलौच देते हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं और खुदकुश हमलों के ऐलानात करते हैं, इस बुनियाद पर हमने अपने आप को इस सियासत से अलहदा रखा है और हम एक मुतबादिल की तौर पर अपने आप को अपनी कौम के सामने पेश करते हैं। मैं अपने भाइयों से बात करना चाहता हूं, बहनें भी मौजूद है, कि मैं अमेरिका की बात नहीं करता हूं, मैं चाइना की बात नहीं करता हूं, मैं फ्रांस की बात नहीं करता हूं, मैं हम जैसे एक गरीब मुल्क पाकिस्तानी की बात करता हूं कि इस वक्त बांग्लादेश जो तकरीबन आबादी में और माहौल में हम जैसा ही है और हमसे जुदा हो गया है, लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त उनकी जीडीपी जो है वो 550 अरब डॉलर है। और पाकिस्तान जिनके साथ जमीन है, जिनके साथ मादिनियात है, जिनके साथ 15 करोड़ नौजवान मौजूद है, हमारा जीडीपी 292 अरब डॉलर है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो इकबाल ने फरमाया है कि सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, बेइंतजामी, मुफादात की सियासत और मुफादात की आग जिसमें हमारी कौम जल रही है। इस वक्त बांग्लादेश में फीकस आमदनी 2227 डॉलर है। पाकिस्तान जो उनसे हर लिहाज से बड़ा मुल्क है, हमारा फीकस आमदनी 1190 रुपया है। शरह गुर्बत वहां 14% है, 29% से कम करके 14% पर आए हैं। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिसके साथ 1000 किलोमीटर साहिल मौजूद है, जिसके साथ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है, गन्ना पैदा करने वाला 6ठा बड़ा मुल्क है, दाल पैदा करने वाला 3रा बड़ा मुल्क है दुनिया का, मादिनियात से मालामाल। 2 लाख बिजली पैदा करने की विजिबिलिटी हमारे खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है।
लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में शरह गुर्बत 14% और हमारे मुल्क में 39.2% है। और ये मेरे फिगर नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के फिगर्स है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे साथ मैं आपको मायूस करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मायूस करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं उम्मीद की शम्मा रोशन करना चाहता हूं, आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा तरक्की के इम्कानात मौजूद है। सबसे बड़ी ताकत तो यही हमारी यूथ है। 15 करोड़ यूथ है, ये किसी और मुल्क के साथ नहीं है। और ये जीनियस तरीन है, दाना बीना है, इंतहाई बासलाहियत है। अब बाहर मुल्कों में जाते हैं, मैं जापान गया, टोक्यो यूनिवर्सिटी में मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, उसके माथे पर एक पाकिस्तानी का नाम था जिसने टॉप किया था। मैं बीजिंग गया, उसके माथे पर एक पाकिस्तानी का नाम था, उसने जितने नंबर लिए थे उतना नंबर बीजिंग यूनिवर्सिटी में किसी और ने नहीं ली थी। एक लाहौर का था, एक सियालकोट का था। तो ये सिर्फ एक डॉक्टर कदीर खान नहीं है, पाकिस्तान में लाखों ऐसे नौजवान मौजूद है। लेकिन इनको माहौल देना, इनको फैसिलिटेट करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना जी, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। इस वक्त हमारा मुकाबला अगर इंडिया के साथ है तो उसने किस चीज में तरक्की की? आईटी में तरक्की की। तो क्या हमारे सर में, हमारी खोपड़ियों में दिमाग नहीं है? हम इसमें कमा सकते हैं। हम अपनी जरी ग्रेजुएट को रकबे अलाट करके और एक शेयर की बुनियाद पर उनके खिदमत में अपने बंजर जमीनें पेश करके हम दुनिया का एक नंबर 1 मुल्क बन सकते हैं। हम ज़राअत के जरिए कमा सकते हैं। हमारे ऊपर कितना कर्जा है, ये कर्जा खत्म हो सकता है। अभी आपने देखा कि हमारे एक कंपनी है, ट्विटर कंपनी, फरोख्त हो गई 53 अरब डॉलर में। 53 अरब डॉलर। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी कुल जीडीपी इससे कम है। तो आईटी इस वक्त एक ऐसा मार्केट है कि उसके लिए तादाद की जरूरत नहीं है, उसके लिए सलाहियत की जरूरत है और लोगों को फैसिलिटेट करने की जरूरत है। मैं दूसरी बात भी इख्तिसार के साथ कहना चाहता हूं। मैं खुद 2 बार खैबर पख्तूनख्वा में फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं और पहली हुकूमत में हमने 2 साल बाद इसमें कामयाबी हासिल की कि अपनी सूबे को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। हमने वीआईपी कल्चर का खात्मा किया था, हमने गैर तरक्याती अखराजात खत्म किए थे, हमने पैसा बचाकर अदना से लेकर मैट्रिक तक तालीम को मुफ्त कर दिया था। हमारे बारे में प्रोपेगंडा तक के तालिबान आ गए हैं, लेकिन सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बराए तालिबात, गर्ल्स मेडिकल कॉलेज, खवातीन यूनिवर्सिटी, उस पर हमने फोकस किया और बनाए। तो हमने उस जमाने में तजुर्बा किया था गैर सूदी बैंकारी का, और सूदी निज़ाम खत्म करना और गैर सूदी बैंकारी शुरू करना, इस पर अमल करना, ये कोई चॉइस नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम अर्रिबा। जब अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया है, फिर किसी और दलील की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं वफाकी शरई अदालत का शुक्रिया अदा करता हूं कि गुज़श्ता 27 रमजान अल मुबारक जिस दिन पाकिस्तान बना था उसी रात को, और जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खात्मे का ऐलान किया था, उसी दिन हमारी वफाकी शरई अदालत ने भी पाकिस्तान को हुक्म दिया कि मजीद पाकिस्तान में रिबा का, इंटरेस्ट का कोई निज़ाम नहीं चलेगा, और एक मुतय्यन तारीख भी दी। आपको अंदाजा होना चाहिए कि 1839 से, अंग्रेज के जमाने से यह कानून था, लेकिन ये इस 27वें रमजान अल मुबारक को हमने उससे आजादी हासिल की। इस पर मैं आप सब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं। अब आप भी सोचते होंगे कि क्या होगा। मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में 7.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जिस पर ज़कात वाजिब है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 30 लाख लोग हमें इनकम टैक्स देते हैं, जिसकी बुनियाद पर सारा निजाम चलता है। तो अगर
हम इस सूदी निजाम की बजाय 7.25 करोड़ लोगों से 2.5% जो अल्लाह का हुक्म है वो ले ले। इस तरह उशर का निजाम जो अल्लाह का निजाम है कि जमीन के पैदावार से 10वां हिस्सा अब बैतुलमाल में जमा करे, इतना पैसा आएगा कि हमारी तालीम मुफ्त, हमारे गरीबों का इलाज मुफ्त, हमारे जो लोग सफर करते हैं बाहर की दुनिया में भी और उसके साथ पैसा नहीं है, तो ज़कात के जो आज बड़े मद्दात है उसमें कैदियों का मसला भी आपका हल हुआ, तालीम का मसला हल हुआ, रास्ते पर चलते हुए मुसाफिरों का मसला, और एक पूरी वेलफेयर सोसाइटी आप इस बुनियाद पर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए विल की जरूरत है। इस तरह आपके लिए मैं लाना चाहता हूं, मेरे मुल्क में इस वक्त 3 लाख बड़े मसाजिद है। अब ये मसाजिद इसलिए नहीं है कि हम इसमें सिर्फ 5 वक्त जाकर 10 मिनट गुजार कर फिर ये खाली रहे, ये तालीम के मराकज हो सकते हैं। तो हमें मजीद बिल्डिंग बनाने की बजाय बेसिक एजुकेशन तो इन मसाजिद में भी बच्चों को दे सकते हैं। ये मसाजिद हमारे लिए बुनियादी जो अदालतों का जो बुनियाद है, प्राइमरी सिस्टम अदालतों का, उसका बुनियाद भी बन सकते हैं। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो अदालती निजाम मसाजिद में था। एक वक्त ऐसा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को भी मस्जिद ही में रखा था। बदर के कैदियों को अल्लाह के रसूल ने मस्जिद ही में रखा था। तो ये हमारे वेलफेयर मराकज भी हैं कि तालीम भी इससे आम हो जाए, माशरे के अंदर अगर कोई झगड़े फसाद है तो वो भी लोकल सतह पर खत्म हो जाए, और यहां बेरोजगारी का इलाज हो सकता है इस मस्जिद को बेस बनाकर। इसी में ज़कात की तकसीम और ज़कात जमा करने का निजाम भी हो सकता है। अब देखिए, मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 8,500 यूनियन काउंसिल्स है। अगर 8,500 यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर हम ज़कात इकट्ठा करने और उशर इकट्ठा करने के लिए अमले का तकर्रुर कर ले, तो हमारे तमाम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिल सकते हैं, और इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप दूसरे ममालिक को कर्ज भी देंगे। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें गरीब पैदा नहीं किया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन में जो जिंदा चीज है उसके लिए अल्लाह ने रिज़्क़ का इंतजाम किया है, लेकिन अपनी बदइंतजामी की वजह से और करप्शन की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से अब हम गरीब मुल्क है। लेकिन इस गरीब मुल्क के 2 घरों का खर्चा, 2 घरों का, सदर और वजीर आजम के घर का खर्चा 868 मिलियन है। 868 मिलियन। तो अगर चीफ सेक्रेटरी मुगल बादशाह की तरह रहता है तो क्लर्क भी उसी तरह चाहता है। अगर आईजीपी मुगल बादशाह बना है, पुलिस भी उस तरह बनना चाहता है। अगर सदर और वजीर आजम मुगल बादशाहों की तरह रहता है तो मेंबर असम्बली और कौमी असम्बली और सेनेटर भी उसी तरह रहना चाहता है। इसलिए मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क में नौजवानों के अलावा एक बहुत बड़ा रिच एरिया है, वो हमारे बहनें, माएँ और बेटियां हैं। हमारा अज़म यही है कि उनको हक दिया जाए। सबसे पहले तो तालीम का हक है, लेकिन उस वक्त 2.25 करोड़ बच्चे अगर तालीम से महरूम है तो उसमें अक्सरियत हमारी बच्चियों का है। यानी हम एक ऐसा जालिम मुआशरा है कि वो हक जो अल्लाह और रसूल ने उनको दिया है, हमने बच्चियों को उस हक से भी महरूम रखा है। इस तरह मिरास में हक, अगर आपने सिर्फ अल्लाह के इस हुक्म पे अमल किया कि मिरास में बच्चों को हक दिया जाए जो हमारे मुआशरे में नहीं दिया जा रहा है, तो आपके ये बड़े बड़े जागीरी तकसीम हो सकते हैं। और इंडिया ने 1947 के बाद ये कमाल किया कि जागीरदारी निजाम को खत्म किया, तो छोटे छोटे रकबे ज्यादा डेवलप हो गए। हमारे मुल्क में आज भी जागीरदाराना निजाम है, बड़े बड़े रकबे और जागीरें हैं। इसलिए एक जागीरदार को पता नहीं होता है कि मेरा रकबा कितना है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बहनों को हक दे दें, तालीम का हक, माशरे के हर शोबे में आगे बढ़ने का हक। हम चाहते हैं कि पायलट भी बने, प्रोफेसर भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने,
सियासतदान भी बने, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इन चीजों से मना नहीं किया है। मेरे मुल्क में अक़लियत है, मैंने असम्बली में तजवीज़ पेश किया है कि जब आप इसको अक़लियत कहते हैं, इससे एक एहसास कमतरी पैदा होता है, इसलिए इसको पाकिस्तानी बिरादरी कहा जाए। उस पर वो बड़े खुश भी हो गए, लेकिन आज तक आईन में उसके लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि उनको भी उनके हक से ज्यादा दिया जाए। तालीम, सिक्योरिटी, रोजगार, ये उसका हक है। और जिस तरह इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मेरे खून को, मेरी जान को, मेरी खोपड़ी को हासिल है, उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ का हक इस मुल्क में इन अक़लियतों को भी है। ये हमारा उनके साथ कमिटमेंट है। मैं इस तरह समंदर पार पाकिस्तानियों की बात करूं कि मैं आपको समंदर पार पाकिस्तानियों की बजाय मोहसिन पाकिस्तान कहना ज्यादा पसंद करता हूं। और अल्लाह ने हमें मौका दिया तो मैं एक शनाख्ती कार्ड भी इसी नाम के साथ अलॉट करूंगा कि पाकिस्तानी जो बाहर कमाकर मुल्क से मोहब्बत की बुनियाद पर यहाँ बेचते हैं और हमारी तरक्की और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे मोहसिन पाकिस्तान है। मैं आपकी सलाहियतों पर यकीन रखता हूँ और समझता हूँ कि अगर हम आपकी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सके तो हम पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकते हैं। आखिरी बात मेरी यही है कि हम चाहते हैं कि एक फलाही और इस्लामी रियासत बन जाए। फलाही रियासत का मतलब क्या है? हम जब इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो इससे मतलब क्या है? उससे मेरा मतलब यही है कि इंसान आजाद हो, कस न बाशद दर जहां मोहताज कस, नुक्ता शरई मुबीन ई असवबस। शरीयत यही है कि एक इंसान दूसरे का गुलाम भी ना हो और एक इंसान दूसरे का मोहताज भी ना हो। मैं चाहता हूं कि जस्टिस फॉर ऑल, इंसाफ हो सबके लिए, एजुकेशन हो सबके लिए, छत हो सबके लिए, तालीम हो सबके लिए, रोजगार हो सबके लिए। मैं जिस इस्लामी माशरे की बात करता हूं उसकी बुनियाद यही है कि असुल्तान वलीयुन मल्ला वली लहू। सुल्तान यानी हुकूमत यानी रियासत, ये वारिस है हर उस आदमी का जिसका कोई वारिस नहीं। जमात इस्लामी इसी मकसद के लिए काम कर रही है। आप जानते हैं, दुनिया इतराफ करती है कि एक हकीकी जमहूरी जमात है। मैंने इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया है कि उस पार्टी को आइंदा इलेक्शन में मौका दे जो इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में अपने पार्टी के अंदर इलेक्शन करे। जो ना करे उसको मौका ना ही मिलना चाहिए, इसलिए कि जब आपके अंदर जमहूरियत नहीं है, अब आप देख के प्रॉपर्टीज है, पार्टी नहीं है, खानदान है, सियासी पार्टियां नहीं है, मुसल्लत है, मुगल बादशाहों की तरह, शहजादों की तरह आज मुसल्लत है। तो मैं इसलिए अल्लाह के शुक्र के साथ कह सकता हूं कि फिलडेट का एतराफ यही है कि पाकिस्तान में जमहूरी जमात जमात इस्लामी है, तरक्की पसंद जमात जमात इस्लामी है, प्रोग्रेसिव है। फर्द की तरक्की, खानदान की तरक्की, मुआशरे की तरक्की। हम एक मखसूस दायरे में घूमने के कायल नहीं है। हम चाहते हैं चांद पर भी कदम रखे, मरीख पर भी पहुंचे। वलकुम मा फिल अर्दि जमिया, इस जमीन और जमीन के अंदर जो कुछ भी है, समंदरों के अंदर जो कुछ भी है, ये मेरे लिए है। अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूं, अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। हम चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत हो जो कमजोर के लिए ज्यादा फिक्रमंद हो। जिस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि अगर फुरात के दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मरता है, उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। ये कैसे होगा? ये हमारी तमन्नाएं हैं। एक बात मैं भी करूं, आपका सवाल भी हो सकता है कि ये बात तो सब करते हैं कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन करप्शन फ्री पाकिस्तान बनने के लिए जरूरी है कि एक पार्टी भी करप्शन फ्री हो। जब आपका पूरा बेस माफियाज पर हो, लैंड लॉर्ड पर हो, ड्रग माफिया पर हो, आटा माफिया पर हो, पेट्रोल माफिया पर हो, तो फिर आप कैसे पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान? इसलिए तो सब नाकाम हो गए। मैं नाम लेने पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जो नाकामियों का एक कब्रिस्तान है जिसमें सबकी लाशें मौजूद है,
یہ اس وجہ سے ہے کہ ان پارٹیوں میں خود اندر نہ جمہوریت ہے اور نہ کرپشن فری ہے. تو جماعت اسلامی جمہوری جماعت ہے اور ایک کرپشن فری جماعت ہے. ہمارا کسی کارکن کا نام، ہم بھی پاکستانی ہیں، وزیر رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، لیکن نیب میں میرے کارکن کا نام نہیں ہے. کوشش بھی کوئی کرے، نیب زدہ کوئی کارکن نہیں ہے میرا. پنڈورا پیپر میں میری کسی کارکن کا نام نہیں ہے، ان لوگوں کے نام ہے. پاناما لیکس میں میری کسی کارکن کا نام نہیں ہے، ان لوگوں کے نام ہے. قرضہ لینے والے، ہڑپ کرنے والے، سٹیل مل کو تباہ کرنے والے، وابڈا کو تباہ کرنے والے، پی آئی اے کو لوٹنے والے، ریلوے کو لوٹنے والوں میں میرا نام نہیں ہے، میرے کسی کارکن کا نام نہیں ہے، ان لوگوں کا نام ہے. اور جب موقع ملا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے. خیبر پختونخوا میں موقع ملا، ڈیلیور کیا. کراچی میں موقع ملا، ڈیلیور کیا. تو اس لیے ایک خوبصورت پاکستان کی تعمیر کے لیے میں اب تمام بھائیوں کی نصرت تعاون چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی وقت لیا، لیکن ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو جو خود بھی قانون کا تابع ہو، اور ایک ایسی حکومت ہو جو اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے، ایک ایسی حکومت ہو جو پارلیمنٹ کو پاورفل بنا لے، ایک ایسی حکومت ہو جو عدالتوں کو آزاد بنا لے، ایک ایسی حکومت ہو جو الیکشن کمیشن کو آزاد بنا لے، ایک ایسی حکومت ہو جو نیب کو بھی آزاد بنا لے، اور ایک ایسی حکومت ہو جس میں عدلیہ آزاد ہو تو شاباش ملے، الیکشن کمیشن آزاد ہو تو شاباش ملے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی غیر جانبدار ہو، نیوٹرل ہو. ان کو بھی نیوٹرل رہنا پڑے گا، نیوٹرل رہنا چاہیے. لیکن یہ تمام سیاسی لیڈروں کو جب وہ بوتل میں بند کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اپنے فائلز ہوتے ہیں، ان کے اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے دوستوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے پارٹی کے اندر بڑے بڑے دراڑے ہوتے ہیں. اس لیے ایک آزاد عدالت، ایک آزاد الیکشن کمیشن اور ایک نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی اس کے لیے کوشش کر رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک خوبصورت اسلامی پروگریسو جمہوری پاکستان، فلاحی پاکستان، خوشحال پاکستان کی تعمیر میں اپنے اپنے حصے کا اینٹ لگائیں. اور آپ تنہا نہیں ہیں، ہم موجود ہیں. آؤ مل کر اس دیوار کی تعمیر کرے، پھر چھت ڈالے، پھر ایک ایسا پاکستان بنا لے جس میں حال اور آئندہ نسلیں آرام، سرور، سکون اور فخر کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.